मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की सहयोगी पार्टी एनपीपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने चुनाव में अकेले जाने का फैसला लिया है। एनपीपी राज्य के 60 में से करीब 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि चुनाव को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा ने आज इम्फाल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा की गई। वहीं पार्टी के नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में केंद्रीय कमेटी के अकेले लड़ने का सुझाव दिया। कॉनराड सांगमा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और इस बैठक में मणिपुर के उप मुख्यमंत्री तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता वाई जॉय कुमार, पूर्व मंत्री तथा विधायक जयंत कुमार सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक में चुनाव की रणनीति और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। In the last election in Manipur, as well as the previous elections in Meghalaya and in Nagaland and other states, the NPP has maintained that we are a party with its own identity, with its own constitution, and its own principles and ideologies. And hence, we have always maintained that we will fight the election on our own, and based on the outcome and the political scenario, we will decide on how to move further. In Manipur, we have also seen that in the past, the BJP recently has also made a statement that they will also go on their own. And they have made a statement and a claim that they will also get majority on their own. So therefore, every political party has the right to contest and fight elections. And based on that, we will also go ahead and we will also fight on the seats, as I said, where we get positive response. And as I said, in majority of the seats, we are getting very positive response. And therefore, once that is done, we will decide on how to move ahead only after election results are out. Question on friendly fight is something that is normally not the way we see things. When we fight in a serious way, and we ensure that every constituency that we're going to contest in is going to be a serious fight for us. So therefore, we're quite firm and clear on our point that we will be taking every constituency seriously, and we will give it our best to ensure that every seat that we contest, the party should win that seat. As of now, there are majority seats, which means 30 plus seats. We already have people who have shown interest to contest on the party ticket. We are also very clear as a strategy, as a policy, that we would like to give a good fight in every constituency where we plan to contest. So therefore, the process of studying and doing a proper research on every constituency is also on. And based on the feedback and the reports we get, we will take a decision. So majority of the seats as of now, we are planning to contest, which is 30 plus. But we may get more response in the future. There is still time. So we will see as the situation unfolds. We will plan and we will see, and only time will tell on how many final total candidates we will get. But as of now, in over 30 constituencies, we have got people who have shown interest of contesting on the NPP ticket. तो अगले साल मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसे लेकर भाजपा की जो सहयोगी पार्टी है एनपीपी ने भी पूरी तरह कमर कस ली है और पार्टी ने चुनाव में अकेले जाने का फैसला लिया है। यहां तक कि एनपीपी राज्य के 60 में से करीब 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इस बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा इम्फाल पहुंचे हैं। इसके लिए अब ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे संवाददाता शरद चंद्र से। जी शरद चंद्र, एनपीपी को बल देने के लिए कॉनराड सांगमा इम्फाल पहुंचे हैं, क्या कुछ रणनीति तैयार की गई, क्या उम्मीदवारों पर भी चर्चा की गई, क्या कुछ हुआ बैठक में? बिल्कुल रश्मि, आज कॉनराड सांगमा मेघालय के चीफ मिनिस्टर और एनपीपी की सुपरमो इम्फाल आया हुआ है और 2 दिन की दौरे पर है। कल 11 बजे वो फिर इम्फाल छोड़ के वापस चला जाएंगे। हालांकि उनकी तुरंत इम्फाल पहुंचने के बाद उनने मीटिंग सीरीज ऑफ मीटिंग जो एनपीपी के एमएलए, एनपीपी की कार्यकर्ता, उनसे उनने मीटिंग ली है। और आज शाम को थोड़ी देर पहले
ये होटल क्लासिक ग्रांड पर उनने एक प्रेस ब्रीफिंग की। उनने साफ साफ बताया प्रेस ब्रीफिंग की समय पर कि मणिपुर में जो आने वाला चुनाव 2022 के चुनाव में कम से कम एनपीपी की 30 उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और उनने ये भी साफ किया कि जब इलेक्शन चुनाव नज़दीक आएंगे बहुत से लोग एनपीपी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और ये चुनाव नज़दीक आते आते ये भी हो सकता है कि एनपीपी 30 से ज़्यादा उम्मीदवार 2022 की चुनाव पे ये उतारे जाएंगे। और उनने साफ साफ ये भी कहा कि इलेक्शन की पहले इलेक्शन जो है वो एनपीपी खुद ब खुद गंभीर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और किसी के साथ प्री पोल अलायंस नहीं करेंगे। रेशमी जी शरद, एनपीपी की अगर हम बात करें तो एक राष्ट्रीय स्तर की, जो पूर्वोत्तर से एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला हुआ है। ऐसे में क्या लगता है आपको 60 में से 30 सीटों पर चुनाव, कम से कम जो कहा है 30 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, कितना जनाधार आपको लगता है मणिपुर में एनपीपी का रहेगा? देखिए रेशमी, अगर पिछले बार की हम इलेक्शन की हम बात करें 2017 की, तो 2017 में एनपीपी ने मणिपुर में चार विधायक वो जीत दिला पाई है। हालांकि 2017 की चुनाव में उनने कम उम्मीदवार भी उतारा है। और ये 5 साल की ये फासला पर ये एनपीपी कितना कर पाया और कितना नहीं कर पाया ये तो फिर आने वाला चुनाव भी बताएंगे। लेकिन कोनराड संगमा काफ़ी विश्वास से भरे हुए थे और इस बात की खुशी भी उन्हें जाहिर की कि एनपीपी अभी तो ये राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल हो चुकी है और उसके साथ साथ लोगों की चाहत एनपीपी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए उनको उम्मीद है कि जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो बहुत से लोग एनपीपी के साथ जुड़ेंगे और उनको पूरा उम्मीद है कि 30 से ज़्यादा उम्मीदवार 2022 के चुनाव में उतार पाएंगे। रश्मि, लेकिन शरद चंद्र 30 से ज़्यादा उम्मीदवार, जिस तरह वो बता रहे हैं कोनराड संगमा भी 30 से ज़्यादा उम्मीदवार, लेकिन काफ़ी चुनौती भी उन्हें झेलनी पड़ेगी, क्या लगता है? बिल्कुल, हमने अभी बताया कि 2017 की जब चुनाव की रिजल्ट देखा जाए तो उसमें उन्हें 4 एनपीपी ही जीत पाया। हालांकि उस वक्त उन्हें बहुत कम उम्मीदवार भी उतारे और उस 5 साल की फासला में ऐसा एनपीपी ने क्या कर दिया ये फिर देखने वाली बात है। और काफ़ी विश्वास के साथ कह रहे थे कि कोनराड संगमा खुद कि 30 कम से कम 30 उम्मीदवार उतारे जाएंगे। 30 फिर भी अगर देखा जाए तो ये बड़ी संख्या है मणिपुर में। एनपीपी की हम बात करें, ये पहले से ही अभी ये बीजेपी और कांग्रेस बड़ी दोनों की राजनीति दल में बहुत मुकाबला चल रही है। हालांकि एनपीपी 2017 की इलेक्शन में ही एनपीपी का नाम लोगों की कानों तक पहुंची है। लेकिन 2022 ये 5 साल के बाद ये उतार पाएंगे कि नहीं ये देखने की बात है। बिल्कुल, लेकिन ये चुनौती भरी ये बिल्कुल होंगी एनपीपी के लिए। कम से कम 30 उम्मीदवार उतार जाना और उसको जीत दिलाना ये कोई सरल काम तो नहीं रहेंगे। रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए एनपीपी ने भी पूरी तरह कमर कस ली है और एनपीपी ने दावा किया है कि 60 में से 30 कम से कम 30 उम्मीदवार वो अकेले मैदान में उतारेगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर एनपीपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। रणनीति बनाई जा रही है, उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है और इस बीच पार्टी ने यह दावा किया है कि 60 में से कम 30 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि काफ़ी चुनौती भरा होगा ये पूरा सफ़र।